Chinese bamboo seeds take 5 years to sprout. It needs nurturing and watering consistently and persistently. Then the magic growth is seen 39 inches in 24 hours. Book reading session with Dr. Kiran Bedi is like nurturing the germinating minds of the youth by building them from within with skills, inspiration, and confidence so that they become the strongest yet flexible backbone of the nation. I wield my power with my words, and that is how I know that my talent is writing because I know how to express myself through my words. My hobby is to read, and my passion is to create, to learn, and to explore. And that is why I love debating because I have learned a lot about myself through debating. Thank you. Playing sports like kabaddi, badminton, and singing are my hobbies. Photography is my talent. I have developed debating skills so that I can put my thoughts and observations in front of others with authenticity. The English dictionary has a word called eco-freak which defines me better than my name. I am passionate for reading, writing and speaking about the environment conservation. That's why I am an environmental activist and India's youngest author awarded with national and world record. I am running my own international youth-led organization called Earth Safety World which is working to educate people about environment conservation and sustainable development. Today a reader, tomorrow a leader. According to me, a person who is passionate towards their goal can achieve anything in his or her life. My hobbies are reading books, exploring myself by meeting new people in my life, and public speaking. Thank you. My hobby is to read different sorts of books, listening music and traveling because I am very passionate to explore the new things and new places, which gives me intense happiness and makes me feel energetic to work harder towards my goal. I love to read newspapers and novels. I'm a keen lover of music. I love to play guitar. I also love to travel and explore new places. I love to play badminton and cricket. My favorite book is The Mountain Is You by Brianne West. This is my favorite book because it has taught me one of the most important lessons in life, and that is resilience. Resilience of mind and resilience of soul. It has also helped me to get out of my comfort zone and be a better version of myself every single day. Thank you. My favorite book is The Mahabharata, written by Rishi Vedvyas. It is not only a book, it is a way to live in your life. Many people say that Mahabharata is a myth or a mythology, but I think that a person who reads Mahabharata and take morals from the Mahabharata can take victory on any difficulty which came in their life. Thank you. My favorite book is The Ikigai, which is written by Hector Garcia and Francis Miralles. This book is talking about the secret of Japanese people of their happy and long life. This book is helping us to understand how we can find the real happiness My of our favorite book is Vidyarthi Jeevan Padhai and Moj, written by Acharya Prashant. It is because I have gained so much clarity about my student life after reading this book. Some books that are close to my heart are My favorite book is The Wings of Fire by Dr. APJ Abdul Kalam. This is my favorite book because this is the autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam itself. There is so much knowledge and good things that I have learned from this book.
The success mantra that I have learned from this book is first, the set goals, second is acquire knowledge, and third is work hard, and fourth is defeat the problems to achieve the goals. Thank you. Out of the books I have read, my favorite book is The Monk Who Sold His Ferrari by Robin Sharma. This book is basically a motivational book which inspires me towards my goal. This book is explained through 7 lessons, and I consider that this book is a guide for happy and self-enlightening life. Thank you. जय धारी माँ आप सब बच्चों को। जय धारी माँ, हमारी ऑडियंसेस का स्वागत है। जी मम्मी जी, हमारे साथ आज हमारे बड़े बच्चे जुड़े हैं और खूब बड़ी बड़ी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत प्यारे प्यारे, हाँ बड़े बच्चे। जी मम्मी आप बात करिए जी। big difference. I think it's amazing the kind of group we have today. All of them know what they want to do. They know what they like, and they're practicing all that. They're reading, they're thinking, they are writing, they're creating, they're playing, they're learning. It's amazing. In fact, they are a life which can educate each other. Actually, आप एक दूसरे को सिखा सकते हो और पढ़ा सकते हो. And I, as a parent, can hear you and see what is it that you're sharing. Because you're reading good books. You're reading good books. I see that. That's why we call it book reading. Because books से आपको inspiration मिलती है, knowledge मिलता है, ideas मिलते हैं, hero आपको tracking मिलती है, paths मिलते हैं, experience भी मिलता है जैसे आप मांग रहे थे. So I think you are doing the right thing, all of you girls and boys. I'm so proud of you. I want to clap for you. I loved hearing you. मुझे बहुत अच्छा लगा. और आपकी उम्र में जैसे हम लोग 14 to 16 कर रहे थे, आज आपको फर्स्ट टाइम इन्होंने 17 के एज ग्रुप को 16 17 रखा है. मार्क डिफरेंस बिटवीन दी ग्रुप अर्लियर ग्रुप्स, बिकॉज सी हर साल आप ग्रो करते हो. आपका हर साल, हर दिन बल्कि इस उम्र में लर्निंग का होता है. और जितना बच्चे अच्छी तरह समझते सीखते रहते हो, आप बड़ी जल्दी बहुत जल्दी हमेशा अपने आप को सक्सेसफुल रखोगे, खुश रखोगे, कामयाब रखोगे. बिकॉज आप हर दिन अपने में इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने में इन्वेस्ट कर रहे हो. इट्स लाइक इन्वेस्टिंग एंड देन रीपिंग द इन्वेस्टमेंट्स. दैट्स व्हाट आपके मम्मी डैडी ने देखा होगा, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो क्या करते फिर उसका इंटरेस्ट में उनकी सिक्योरिटी बन जाती है, और जो इंटरेस्ट से आपको स्कॉलरशिप देते हैं, पढ़ाते हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हैं. इन्वेस्ट करते हैं तो आप रीप कर सकते हैं. अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो रीप कैसे करोगे? तो आप में से जो भी आपने मुझे बताया अभी तक, दिस इज ऑल एन इन्वेस्टमेंट इन योर लाइफ. एंड द बेटर योर क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, द बेटर द रिटर्न्स. So if you are learning music, if you're learning a great book, if you're playing some tennis, if you get into writing, I think it's an amazing thing that you do, and that you are keen to learn. You are learners. तो आप अपनी लाइफ में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते ही जाओ. यही मेरा आपको मेरी गाइडेंस होगी, करते ही जाओ. और जिस तरीके से इंडिया इस वक्त राइट ट्रैक पे जा रहा है, लीडरशिप समझ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, और दुनिया में भी आज इंडिया की बहुत तारीफ है, और तुमने उसको रीप करना है. ये जो आज इन्वेस्टमेंट जो भी हो रही है इंडिया में, आपने उसका बेनिफिट लेना है, लेकिन यू विल बी पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट. रिमेंबर दैट यू आर गोइंग टू बी लीडर्स ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट. यू विल बी टेकिंग इट फॉरवर्ड. आज देखा, आज कैबिनेट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव कर दिया. आज today you will hear it in the news today and tomorrow. Must be careful, must read it carefully, because the whole system has changed. Up to the class 5, language teaching will be in mother tongue. सभी सारी टीचिंग अपने अपनी लैंग्वेज, अपने अपने रीजन की मदर टंग में होगा, सभी के बराबर. दैट मीन्स होल एक जबरदस्त कल्चरल चेंज आएगा, जिसमें आप देखेंगे वो बच्चे भी जो इंग्लिश की वजह से पीछे रह जाते थे, जो इंग्लिश नहीं सीखे, वो बच्चे उभर के आएंगे, वो नए ब्रेन्स आएंगे. सो एक इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड बन रही है, गांव से निकले के आएगी. तो कल जब एजुकेशन पॉलिसी की अभी मैंने न्यूज पढ़ा
कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, ये बहुत जबरदस्त एक नया रेवोल्यूशन। जब से इंडिपेंडेंट हुए मेरा कई सालों से फर्स्ट टाइम एजुकेशन पॉलिसी बदली। उसमें ग्रेजुएशन में भी क्या प्लान्स है, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, फर्स्ट सेकंड ईयर ग्रेजुएशन करोगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और थर्ड ईयर ये आपको इमीडिएटली लागू होने वाला है। नेशनल एजुकेट थर्ड ईयर करोगे तो बीए मिलेगा। एमफिल उड़ गई, दैट मीन्स आपने थर्ड ईयर करके स्ट्रेट अवे एमए करके सिर्फ एक साल में पीएचडी कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दैट प्राइमरी स्कूल, कैसा प्री प्राइमरी। सो मैं आपको इसलिए ये नहीं कह रही कि मैं आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिखा रही हूँ, मैं आपको ये समझा रही हूँ कि आपके लाइफ टाइम में 2047 आना है। 2022 तो हो गया, 2047 तब तक यू विल जस्ट बी मिडिल एज्ड एंड यू विल सी 100 years of Indian independence। आपको तो बल्कि एक नक्शा बनाना है कि जब मेरे 100 years होंगे मेरे भारत के इंडिपेंडेंस के, मैं कहाँ होऊंगा या कहाँ होंगी, what will I be, who will I be, till then what will have I invested into my country, because you are the reapers and investors। आप सो भी कर रहे हो, अभी आप अपने में बीज बो रहे हो, you are investing into yourself, but as you grow your investment will benefit the country, your skills, your brilliance, your intellect, your personhood, your knowledge, your creativity, your all everything will the country reap। तो कितना आनंद आएगा। और अगर हर एक कोई ऐसे इन्वेस्ट करने लग जाए अपने देश में, तो देश कितना जबरदस्त बनेगा। उस वक्त 1.44 मिलियन हो चुके होंगे आप उस वक्त, जब बाय द टाइम यू आर इन 100th year, इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, and you will be exporter of skills to the world while the rest of the world is aging। India will in 2047 India will be a demographic dividend with maximum skills, with maximum youth around। जापान भी आपसे मांगेगा, ऑस्ट्रेलिया भी आपसे मांगेगा, अमेरिका भी आपको से मांगेगा, यूरोप भी मांगेगा, हमको स्किल्स चाहिए। और उस वक्त स्किल्स ही स्किल्स, अगर हमारे पास आप जैसे बच्चे लायक बनते गए और जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, यू कैन सी एक समुंदर बन रहा है स्किल्स का, समुंदर। तो आपको अब इस एंगल से खूब अच्छी तरह देखना है। तो आप में से एक जने ने बोला आई रीड न्यूज़पेपर्स, मे आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू मस्ट रीड द न्यूज़पेपर्स। आपको एक पेपर को लेना है और एक ही उसकी हेडलाइन पढ़नी है, उसका कभी कभी एडिटोरियल का टाइटल देखना है, और आपके इंटरेस्ट के अनुसार उसका एडिटोरियल देखना है, एडिटोरियल पढ़ना है। और मेरी सजेशन ये आपको कि आप एडिटोरियल की समरी लिखनी है, एक पेज। मेरे पापा मुझे करते थे ऐसे, डॉम मोरेज का इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल आता था, एंड यू नो व्हाट माय फादर यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू से read this editorial, and you know what is most difficult, he says translate it, now translate into Hindi। देखो अभी इतने साल हो गए, मुझे याद आ रहा है क्या मुझे पापा कराते थे, लेकिन वो मुझे एडिटोरियल रीडिंग की आदत अभी भी है। नाउ आई रीड अ फ्यू पेपर्स एंड आई गो स्ट्रेट टू द एडिटोरियल कि एडिटोरियल में क्या है, सेंटर पीसेस में क्या है, और सेंटर पीसेस में से जो अच्छा आर्टिकल होता है उसको अभी भी मैं क्या करती हूँ, मार्क करके अपनी लाइब्रेरी बनाती हूँ। I have a library of some of these editorials, and they go into categories. They go into categories of education. They go into category of India, about India. They go into category of development. They go into category of many other articles out there. Technology, future India, inspiration. So I think get into the habit of reading the paper, reading the newspaper, क्योंकि जो हाथ में हार्ड कॉपी पढ़ के आनंद आता है वो इंटरनेट से नहीं आता है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हार्ड कॉपी भी नहीं है तो आपके पास इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होती, या किसी के पास टाइम से नहीं है, या आपको गो टू द इंटरनेट एंड देन पिक अप दैट आर्टिकल विच यू रीड, उसका एडिटोरियल जाओ और एडिटोरियल का प्रिंट आउट ले लो, या सेव करो फोल्डर में उसी वक्त, पुट इट इनटू अ फोल्डर which is your folder of education, books, authorship, inspirational persons, folder बना दो अपने इंटरनेट पे। तो मुझे ये सारी बात जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको देख के मुझे भी इंस्पिरेशन मिली कि वी हैव सच लवली यूथ, और आपका फ्यूचर कहाँ है। यू हैव टू लुक एट योर सेल्फ, वेयर विल यू बी एट द एज ऑफ 20,
then 25, then 30, and then 40. And when India celebrates 50 years, 100 years of its independence, what will you be? What would you have done already for building your country? आप में से एक ने क्वेश्चन पूछा है, आपका पहला क्वेश्चन इंटरेस्ट है, which has also inspired me. हाँ, I think Samia has asked this question. Takes a lot to be brave and to be eccentric. As students, what types of changes can we bring in to revolutionize the world we live in? We live in, and particularly as women, how can we help other women to be courageous to brave the storm? Now, the underline which inspired me is to revolutionize the world. What should we do to revolutionize the world? Revolutionizing the world is one person, each single person. And if you're creating a revolution of your heart, your mind, your brains, and learning excellent skills, one person changes the world. One person creates a whole product. One person revolutionizes. One idea called the brand great idea, not just an idea, but a brand idea, wide idea, big thought changes the world. तो ये हैं आप. So आप बड़ी यूनिक एज में हैं and unique times में हैं. You asked me about those women in this issue. There is no difference between, it's only a biological difference between when the education is complete, when education is equal, there is no difference. Now the difference is how she or he uses that education. Parents say yes or no is not the issue. Your school is giving you equal education, then how are you unequal? Your parents may have two views on girls and boys. Your parents may have, I agree, some may have. But your schooling is not showing any difference. Your books are not showing any difference. So why are you different? On the contrary, you are equal and you have a brain, beautiful brain of your own. The emotional quotient, research after research is proving that women make better CEOs. Why? Because they have greater empathy. They have greater collaborative skill. They are happy with networking. और आज तो टाइम चैलेंजेस हो गए कोलैबोरेशन के लिए, कंपटीशन के लिए नहीं. कंपटीशन है कुछ चीज में कंपटीशन, पर हर चीज कंपीट नहीं होती है. स्टेज कम्स व्हेन यू कोलैबोरेट, you work together, team spirit, teamwork. That's why schools train you, take you towards team games. Play your team game. कभी avoid नहीं करो team game. Even if you are not very good at, doesn't matter. Play the team game because it teaches you skills of team building. So this is what, in fact, that's what inspired me today to make these opening. Now I want to hear from you. I want to hear from you now. Ritika, all of you turn by turn. Tell us, what would you want to hear today from me and Saina? Good evening, ma'am. First of all, I want to introduce myself. I am Ritika Parmar, studying in Standard 12, having the PCMB subject group in Sri Ayappa Public School in Bokaro Steel City. Ma'am, I am very happy to see you here, and also I am very thankful to the BRS team for having me here to join this session. Thank you, ma'am. And ma'am, I just want to ask you two of the questions about the Shraddha Didi case. You might have heard. What is that case? Shraddha Didi case? Ma'am, the murder case. Oh, Yes, recent ma'am. murder. Acha. What you should please ask? Ma'am, I just want to know your views regarding the case. That how could a person be like that? You see, first of all, obviously, Shraddha has shown great deal of immaturity. You see, Yes, ma'am. technology is for your betterment and security, not insecurity. Technology. She used technology, found a friend, but did not do due diligence. When you decide to dedicate your life to a person, the first requirement is
where we all have made a mistake. We all make mistakes. First requirement at this young age, I would like you to tell, to get not emotionally swayed. क्योंकि उस वक्त तो समझ नहीं होती है. हम लोग माँ बाप को भी नहीं सुनते हैं, समझदारी की फ्रेंड्स को भी नहीं सुनते हैं. हम सोचते हैं नहीं, जो हम कर रहे हैं वही ठीक है और जो मैं चाहता हूं वही. तो इसमें 99% हम में से गलती होती है. 2-5% नहीं करते, वो समझदार रहते हैं. लेकिन 95% है मेरे पास परसेंटेज, I'm guessing only. So she did, what did Shraddha do? She used the app for dating and she found a man and then gave herself to that man without due diligence. You see, because your question is this, that's why I'm answering it this way. Though she's Yes, no ma'am. more, I'm not finding fault. I'm trying to learn lessons for you as teenagers. आफ्टर ऑल वो टीनेजर ही थी. आज उसके फादर का लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखा. उसके फादर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने कहा कि जब वो 18 की हो गई तो उसने अपने फादर को कहा, अब मैं बड़ी हो गई, अब मैं 18 ईयर ओल्ड हूं, मैं अपने फैसले खुद करूंगी. शी टोल्ड हर फादर. दैट्स व्हाट द फादर सेड कि अब मैं क्या करता. उसने बच्चे, बल्कि फादर ने कहा है कि क्या करें अगर 18 ईयर ओल्ड बॉय और गर्ल हम के कह दे अब तो हम बड़े हो गए जी, अब हम अपने जिंदगी के फैसले कर सकते हैं, आप कौन है, आप मुझे दखलंदाजी क्यों करते हो. वो भूल गए कि उसके बिगेस्ट वेलविशर्स तो उसके माँ बाप हैं. हम बच्चे भूल जाते हैं अपने बिगेस्ट वेलविशर को, क्योंकि वो आपकी बात नहीं मानने वाले, इसलिए आप उनको चैलेंज करते हैं और फिर वो भी तंग आके छोड़ देते हैं आपको. कई छोड़ देते हैं, कई नहीं छोड़ते. बड़े घर में झगड़े होते हैं. ये घर घर की कहानी है. सो इस वक्त ये उम्र में आपको ये समझना है, एक्सपीरियंस से. अब आप बच्चा कन्वर कह रहा था मुझे एक्सपीरियंस दो, मैं यही एक्सपीरियंस आपको दूंगी. सबसे बड़ी गलती हम इमोशन से ही करते हैं कई बार, और जब इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते हम पार्टनरशिप ढूंढते हैं. लेकिन अगर पार्टनरशिप ऐसे रैश में आप फैसले कर ले तो जिंदगी भर के कॉन्सिक्वेंसेस भरने पड़ते हैं. जिंदगी भर दे बिकम लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस and they don't leave you. So what did Shraddha do? She made a big without due verification and patience or consulting her parents, because parents she knew will not agree on this interfaith marriage or marriage nahi live in relationship maybe. So number one, what she did, I think she was impatient and immature. Secondly, she was not careful that this is my life also. How am I choosing a partner? Number three mistake she did. All right, you may go right. It may go right. But as life goes on, there can be a mistake. And when he started to misbehave with her and start to be violent with her, she kept pardoning him and tolerating him. She did not go to the police for help. She did not go to parents for help. तो वाई शुड यू कंटिन्यू? क्या तुम्हारे में कमी है कि तुम कंटिन्यू टॉलरेट करी जा रहे हो वायलेंस उसकी? मैं इस वक्त उन चीजों में नहीं कि वो पुलिस के पास गई तो क्या पुलिस ने क्यों नहीं एक्शन लिया. वो पुलिस का काम था. पुलिस भी फेल हुई ना. पुलिस के पास जब गई तो पुलिस क्या करती है, एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई, चलो ठीक है, तो कंप्लेंट को सीरियस ने नहीं लिया, जबकि पुलिस को लेना चाहिए था, पुलिस को बुलाना चाहिए था. एनजीओ के पास गए, एनजीओ को दोनों, लेकिन ये दोनों नहीं आई या ये नहीं आई. तो अब लेकिन वेकिन की बात. द क्वेश्चन हियर, लेसन टू बी लर्नड इज, so I would draw two lessons. One lesson, इन चीजों में इमोशनल होके गलती नहीं करना. वेट करो. Listen to your parents. Listen to your parents. Even if the parents are not agreeing with you, because parents are your well-wishers. There's nobody better, more well-wisher than you, your parents. There's nobody. ये दिमाग से निकाल दो कि मेरी फ्रेंड या मेरा रिलेटिव ये मेरा वेलविशर है. नहीं है. पेरेंट्स इज वेलविशर कोई नहीं है. और उन्होंने लाइफ देखी है, उन्होंने एक्सपीरियंस देखा है. और दूसरा, जब आप गलती होती है, आपके गलती हो गई, मान लीजिए इनोसेंटली हो गई, गलती कोई भी कर सकता है, गलती इंसान करता है, गलतियां करके तो इंसान सीखता है. तो गलती हो गई, लेकिन गलती को रिपीट मत होने दो, तब आप बेवकूफ हो. अगर गलती देख रहे हो तो उसको पहले स्टेप पे रोको.
अगर वो उस पहले स्टेप पे रोकती तो ये नहीं हालत होती। उसे बताया नहीं, हेल्प में नहीं मांगी और अपनी मदद भी नहीं की. शी कंटिन्यू टू टॉलरेट हरसेल्फ. So these are two mistakes. One, do not allow a mistake to continue if you detect a mistake. And and first, uppermost is never lose faith in your family, in your parents. Consult them. And if you take a decision otherwise, then don't if something wrong happens, do not severe relationships with them. Stay in contact, stay in communication. क्योंकि फैमिली की सपोर्ट जब टूट जाती है तो दूसरा पार्टनर सोचता है तुम कमजोर हो गए, अकेले हो गए, जितना मर्जी कर लो. अगर उसको पता हो कि इसके पीठ के पीछे माँ बाप है, फैमिली है, तो इतना गलत नहीं कर सकता था, क्योंकि फैमिली आती, बीच में आती. He isolated her and she isolated herself. So what happened? She became weak and she became dependent. So ये दो गलतियां, बड़ा कुछ और सबक पुलिस के लिए भी है, समाज के लिए भी है, लेकिन नेबर्स के लिए भी है, बहुत कुछ है, फ्रेंड्स के लिए भी है. We are at the moment talking about only her. Right? Okay, Ritika? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. So keep the dialogue on with your parents. Must continue. You must have a parent, mother or a father or a brother or a grandfather. You must have one confidant जिससे आप बात कर सको, जिसकी बात सुनो, जिसकी बात में विश्वास करो. एक तो कोई होना चाहिए. अगर माँ बाप है तो बहुत, हाँ, घर घर की अलग अलग सिचुएशन है, लाइफ टू लाइव्स आर नॉट सिमिलर, बट किसी में तो विश्वास करो. फ्रेंड्स में सिर्फ गलना ये 100% गलत है, क्योंकि फ्रेंड इज सेम एज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस. शायद फ्रेंड भी उसी गलती में फंसा हो, भगवान जाने, तो वो क्या सलाह आपको देंगे, करे. सो ये लाइफ का एक्सपीरियंस ये है जिंदगी का कि अपने पेरेंट्स को अपर मोस्ट रखो फॉर फेथ एंड रिस्पेक्ट. एंड parent means family, any member of the family who's older than you. Okay, Ravi, your question. What would you like to ask and what would you like to know? गुड इवनिंग मैम. Good evening. यस मैम. मैम इसी इंसिडेंट से सीख लेकर एक क्वेश्चन है मेरा. जैसे हम लोग जैसे टीनेज में आगे बढ़ेंगे, आगे कॉलेज लाइफ में जाएंगे, तो न्यू न्यू फ्रेंड बनाएंगे, तो उसके लिए क्या ध्यान में रखना चाहिए न्यू फ्रेंड बनाते समय, न्यू कंपनी, न्यू रिलेशंस, इसके लिए? वेरी गुड क्वेश्चन रवि. ये भी बड़ा, रितिका का देखो, तुम्हारी उम्र अच्छी है इसलिए यू आर आस्किंग क्वेश्चंस एट द कस्प ऑफ मैच्योरिटी, जो कि आपको वाकई में बड़े टर्निंग पॉइंट्स है. इसी ये टर्निंग पॉइंट्स आ गए. यू मेक गुड फ्रेंड्स, इट मेक्स योर लाइफ. यू मेक बैड फ्रेंड्स एंड इफ यू डोंट डिटेक्ट दैट दे आर बैड फ्रेंड्स, दे रूइन योर लाइफ. आप उनको बचाने में अपनी जिंदगी खराब कर दोगे. So you are known, remember one thing, Ravi, you are known by the friends you keep. If you are in the company of good friends, bright friends, अच्छे value based friends, you are known by that. It's a flock. The way what company you keep is your test. मान लीजिए आपने फ्रेंड बहुत अच्छा बनाया, मान लीजिए, लेकिन वो गलत रास्ते पे चलने लग गया, तो आपका क्या फर्ज बनता है? उसके साथ गलत रास्ते पे नहीं चलना, उसको बचाने की कोशिश करनी, समझाने की. अगर वो नहीं समझता, कंसल्ट योर पेरेंट्स कि हाउ डज दिस मैन गेट ऑन एज अ गुड फ्रेंड, ये सुधर जाए. लेकिन ये नहीं मतलब आप बिगड़ जाएं और अपने आप को तबाह कर दें उसके साथ. सो यू आर नोन बाय द फ्रेंड्स यू कीप, नॉट बाय द नंबर ऑफ फ्रेंड्स यू कीप, but even few best friends you keep. और फ्रेंड की बात सुनो, लेकिन जरूरी नहीं बात वही करो जो फ्रेंड कह रहा है, क्योंकि अगेन योर बेस्ट फ्रेंड्स आर योर पेरेंट्स. यू हैव टू टेक कॉन्फिडेंस कि मेरा फ्रेंड ये सजेस्ट कर रहा था क्या करना है. फ्रेंड ने कहा ये सब्जेक्ट ले लो, मैंने भी इकट्ठे सब्जेक्ट लेंगे, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, यू विल नॉट टेक दैट सब्जेक्ट. पास तो तुमने होना है, इम्तिहान तो तुमने देना है.
बल्कि फ्रेंड्स में ऐसी अपनी एक्टिविटीज बनाओ विच आर क्रिएटिव एक्टिविटीज। इकट्ठे खेलो, इकट्ठे पढ़ो। सी इकट्ठे खेलो, इकट्ठे पढ़ो, इकट्ठे एक दूसरे को कुछ सिखाओ, इकट्ठे एंजॉय भी करो, लेकिन इकट्ठे गलत आदतें नहीं करो। So you are known by the friends you keep. So be very selective of your friends. जरूरी नहीं होता पहले आप सारी कैरेक्टर वेरिफिकेशन करो तब फ्रेंड बनाते हो। फ्रेंड तो बन जाते, क्लास में बैठे फ्रेंड बन जाते, खेलते हुए फ्रेंड बन जाते, लेकिन द मोमेंट यू डिटेक्ट ये फ्रेंड की आदत ठीक नहीं है तो उसको बोल, यू आर माई फ्रेंड, फ्रेंड इज अ फ्रेंड, आई केयर फॉर यू, बट लुक आई डोंट थिंक फॉलोइंग हैबिट्स आर गुड फॉर अस बिकॉज दिस इज समथिंग विच विल नॉट मेक आवर लाइव्स। वो कहता है तू मेरा फ्रेंड नहीं, फिर धमकी से ब्लैकमेल से नहीं करो, और साथ में ब्लैकमेल मत होने देना। उसने भी गलती की, तुमने भी गलती, दूसरों को छिपाया, अब आप डरते हो कि मैंने इसको छोड़ दिया तो ये मेरी शिकायत कर देगा डैडी को। ऐसी ऐसी एम्पावरमेंट पावर अपने फ्रेंड को मत दो। लेकिन अगर फिर भी हो गया बात, फिर भी हो गया, सारी जिंदगी तो नहीं गई ना, तो बोलते हाँ जब बता दो मेरे डैडी को, मैं अपने पापा से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई नहीं बता दो, मेरी गलती हुई, ठीक है, मैं गलती एक्सेप्ट कर लूंगा और मैडी डैडी से माफी मांग लूंगा, और पापा को थोड़ी देर गुस्सा होंगे, डिसअपॉइंट होंगे, लेकिन सारी लाइफ तो नहीं खराब होगी ना मेरी। सो डोंट गेट ब्लैकमेल्ड। एक तो उसकी बात मानो नहीं, उसमें फ्रेंडशिप फॉर रॉन्ग डीड्स नहीं करो ताकि डर रहे। ऐसे होता है, ब्लैकमेल करते हैं फ्रेंड्स एक दूसरे को, पहले गलती करा के, कोई एविडेंस रख के, कोई वीडियो लगा के, कोई गलत एक्ट करते तो वो रख लेते, तो फिर ब्लैकमेल करते, देखो मेरे हाथ में ये, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा, आप बोलो अब मुझे हो गई गलती, अब मुझे और नहीं करनी है, तुम जाओ दिखा दो, जाओ दिखा दो, मैं पेरेंट्स को समझा दूंगा हुई मेरे से गलती, लेकिन माँ अब दोबारा नहीं होगी, एंड देन यू स्टिक टू दैट। सो दिस इज हाउ यू मेक योर फ्रेंड्स। You should be known as a good friend yourself. People want to be your friend because you have good habits. फिर चुगलखोरी नहीं करो, इधर की बात उधर मत करो, that's good friendship. उसकी बात बुरी दूसरे को मत बोलो, उसी को बोलो, लेकिन दूसरे को मत बोलो। Don't, you need to be good. Friendship also means respecting each other's respect and dignity. तो अगर शेयरिंग करनी है उसको समझाओ, लेकिन अगर कंपनी छोड़नी है तो उसको समझा दो, लुक वी आर फ्रेंड्स बट आई डोंट वांट टू, मैं और तुम्हारे साथ नहीं दे सकता इस चीज में, सो थैंक यू सो मच, आई एम योर फ्रेंड एंड नथिंग विल गो आउट ऑफ माई माइंड अबाउट यू, कीप इट, बट आप अपना काम करो। सो दिस इज हाउ रवि आई थिंक यू कैन। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. मोस्ट वेलकम। सामिया योर्स। अदब और अदाब से आप सबका हम लखनऊ से इस्तकबाल करते हैं। Thank you so much, team Demonstrative Learning and Dr. Kiran Bedi ma'am, for giving me this wonderful opportunity to be here amongst you today on this reading session on this pleasant December evening. I would begin with my introduction. I am Samia Hadi and I am a student of class 12th from City Montessori School, Chowk campus. I come from the beautiful city of Lucknow with its rich cultural heritage and, of course, its magnificent food. I am an avid reader. I love to read anything to everything, ranging between fiction to non-fiction, but I am particularly interested in poetry. I am extremely passionate about my magazine, which is called The Kaleidoscope. I would just like to include here that I have created it with the help of 4 of my classmates. And I'm also very passionate about my own podcast. It is called Booked. And it is where I talk about books. And these are the things that I'm passionate about. Ma'am, I would really, really like to. I don't know if it is visible on my face, but I'm extremely overwhelmed right now because you have always been a great inspiration to me, and every morning when I wake up, I look at my notification, has ma'am posted one good morning nutrition for me, because it has become an extremely important part of my spiritual diet. And every morning I wake up, and after my fajr prayers I include your good morning nutrition in, and it has really, really helped me. It gives a quick head start to my day. And I नाइस। think yes, and I would just like to include here that, ma'am, precaution is always, always, always better than cure.
And if there is anything which happened with Shraddha Di, it is particularly also because it is also a problem with our society. The society is partly to be blamed because it is true that now that we women have better opportunities in life, better things to look up to in our future, there is still this small section of women which are not that emancipated, not much empowered, and they are still, you know, thrown back, they are still kept back, and there is something which is stopping them, and that is particularly because they are not that much empowered. And I'll include Shraddha Di in that category because she was not empowered, she was not emancipated, she had not been given that you know that thing that Shraddha, you have that self esteem, you are capable of fighting everything and anything, you are capable of doing anything, and you there is nothing that is, you know, that is validating you from stopping and using your complete potential. So that is something which I would like to add on to that. And another thing is that having friends, you should always check whether am I here, am I Just audible? no, you are audible. I think that your had got switched. Can Good. we check what's gone wrong with the Huh. technology? Okay. Did Let you? me just Now it's okay. Samia, carry on. Now yes, it's okay. yes, am I Beautiful. great. Second thing So was yes, on like friends I you was were saying. saying that about second thing which I wanted to talk about was about friends. Ma'am, it is something which I have picked up from you, and I'll take it from there. You always say that we should always find commitment in people. And that is what I would like to say. Whenever you are making friends, you should always look for good commitment. People who are accountable, people who are responsible, and people who will help you to grow more, to be a better version of yourself. So these are the things which I would like to add on to what you said. Thank you. How nice. Very, very nice, Samia. See, that's why you showing already at this age very great deal of maturity in your thinking and clarity in your thinking. All you have to do, you are right, Samia. What went wrong with this girl? जब वो she did her courses, she's done a graduation, she studied in a good school or university. What she did not learn while growing up is self respect, self dignity, Yes. empowering her own. Who is she? What is she purpose? What is the purpose of life? She did not. All of you have a purpose in life. Identify. Uska purpose kya tha? What was the purpose of her life? अपना अपना पर्पस जब ढूंढ लोगे तो भटकोगे नहीं। फिर आपको अगर भटक भी गए तो भूलोगे नहीं कि हाँ मेरा ये भी पर्पस था, तो मैं इसको क्या कबूल कर, एम आई फुलफिलिंग दैट? So I think, as she rightly said, just making a graduate degree does not educate you unless you are above fear and you're not courageous. As long as you are afraid and you're not courageous, you're not educated. You have a degree. जिसके पास हिम्मत नहीं है अंदर की और डरपोक है और अंदर हिम्मत नहीं है और साथ में पर्सनल डिसिप्लिन नहीं है, वो एजुकेशन क्या है? हमारे एल्डर्स को देखो, एल्डर्स में कई दादी नानी कितनी वेल नोन थी, कोई ग्रेजुएट नहीं किया, कोई पीएचडी नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन कितनी हिम्मत वाली थी वो मदर्स, कितनी हिम्मत वाली थी, कितनी बहादुर थी, कितनी समझदार थी उन्होंने, और सेल्फ रिस्पेक्टिंग भी थी, कैसे उन्होंने परिवार बनाए और परिवार चलाए। सो कई आप देखेंगे बड़े वेल नोन परिवार, families are known by the mothers and the grandmothers they had. So ये जो पढ़ाई है सिर्फ सिर्फ डिग्री नहीं है, इस पढ़ाई से बहुत कुछ सीखना है, एक्सपीरियंस लेना है बुक से। एक्चुअली बुक्स आर नथिंग बट एक्सपीरियंस। Ma'am, education is very different from learning. Like you said that our nannies and our dadis, they did not have education, but they learned. And I like to include here from Kanvanur. He said that he wants to get experience. So experience does not come just from education. It comes from learning. When you read a textbook and when that textbook comes to life, when you study something and you see it with your own eyes, that is when you start learning things. Like you said that from this Shraddha murder case, it is a very heinous crime, and but there are a lot of things which you can learn from it, from what we have been studying from our books, that these are the things which we should stay away from. This crime is actually something which is practical and which we are seeing with our own eyes, and that is something which we are learning from. It is a takeaway from that. See, every book has a lesson.
But the question is, what have you learned from that lesson? Every class has a lesson. आज की lesson क्या है? But what have you learned out of that? So what have you learned from that lesson? It's a lesson. It's a chapter. It's a lesson. But there's a lessons to be learned. What have you learned? So there's a takeaway from every class. We think it's a rote learning और उसका इम्तिहान नहीं है, लाइफ का इम्तिहान लेना उसमें से, उस लेसन में से तो आपने that's a lesson for life. It's a lesson for you to teach somebody else who's written the life's experience or learning. आपने उससे सीखा क्या और अपनी जिंदगी के लिए imbibe क्या किया? So I think these are the messages which you as students, as you go into college, as you finish with your school, every book when you open, it's a lesson which you have to learn, which is leading to education, larger meaning of education. Okay, let's go to Samriddhi. You're all very bright answers and you're debating so well. Samriddhi? A very good morning to good evening to everyone. I am Samriddhi. I am 17 years old. I am in class 12th in commerce stream. I'm from Swami Sandas Public School, Jalandhar. So my question for you is, ma'am, like you achieved everything you wanted in life. So what we should imbibe that we and can also achieve? Like we see motivational videos, we are motivated for some time, but after some time the same happens. Like we are not motivated for a long period of time. So, what inspired you for your goals? How do you remain healthy? By ओ eating good मैम, food. हम तो अब ना इतनी देर आप हेल्दी रह चुके, अब आपका गोल क्या है? हाउ डू रिमेन हेल्दी? समृद्धि, हाउ डू रिमेन हेल्दी? Like I remain healthy as it is. Like I नो, don't do anything. No. what is keeping you healthy so far? Like like normally I am healthy. I don't do anything for being healthy. What is We keeping you healthy? like I don't understand what are you asking basically? आप हेल्दी क्यों हो? आप हेल्दी ऐसे अच्छे क्यों हो? तुम सारी कुछ ठीक लग रहे हो, हेल्दी हो, तंदुरुस्त हो, क्या है जो आपको तंदुरुस्त रखा है? क्योंकि I eat healthy food, I exercise and all. हाँ, and all नहीं, आप eat healthy food, you exercise, what else? Just yes, ma'am. You eat Bas. healthy food, you exercise, but is health only mind, is a body or is it mind also? It's mind also. You should cultivate positive thoughts in it. Correct. So positive thoughts भी रखते हो, लेकिन Yeah. अब तक की तो हेल्थ हो गई, कल के चांसेस ले सकते हो, अब मैं गलत फूड भी ले लूं और नेगेटिव थॉट्स भी ले लूं और गलत चीजें भी करूं तो मैं हेल्दी. So you are saying, look, every day is a fresh life. Every day is another day of your life. And every day you have to do all the things which you did right yesterday and do it a little better. All the things which you achieved till yesterday, that's what you are today. Now, what do you want to be tomorrow? Oh, I want the same things tomorrow. That means I have to do all the things which made yesterday possible today. Yes. Is there a holiday in good food? No. Is there a holiday in good thoughts? No. Is, is there a holiday in good, clean relationship environment? No. Is there a holiday in good behavior? No. Is there a holiday in having good friends? No. Is there a holiday in good entertainment? No. Is there a holiday in good choices? No. But that was yesterday. वो तो बीत गया, क्योंकि आज जो हम हैं वो कल तक बीत गया. आज हम वही हैं जो हमने कल तक किया. अब हम कल क्या चाहते हैं? अगर कल आएगा तो मुझे सारी चीजें जो आज मैंने एक्सपीरियंस की हैं कि which have worked for me, I'll make them work again. You can't say आज छुट्टी. Yes, you can sleep well. Sleeping does not mean bad health. Sleeping means rejuvenation. Sleeping means renewal. Sleeping means rest. Sleeping is good holiday for the body and the mind and the soul. Yes. Isn't it? So आपने मुझे जो पूछा, जो आपने कल तक ठीक किया था, अपने आप से पूछो, वो तो मुझे करना है दोबारा.
और जो मैंने कल किया था, अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, अब मैं बेटर सोच सकती हूँ, बेटर कर सकती हूँ, मैं वो ऐड करूंगी अब से, ताकि मेरा कल बेटर हो। इसीलिए आपने देखा है, अच्छा, जो समझदार लोग होते हैं, जो कल अच्छा करते हैं, वो आज भी करते हैं। अगर कल दान दिया, आज भी दिया, कल अच्छा बोला, आज भी दिया, कल अच्छा पढ़ा, आज भी पढ़ा, क्योंकि मुझे आज भी तो जीना है ना, Yes. ताकि मेरा कल अच्छा हो। कल तक मेरे अच्छे दोस्त थे, आज मैं बुरे दोस्त की तरफ क्यों जाऊं? आज भी मैं नया अच्छा दोस्त बनाऊं, या अच्छे या पुराने दोस्त को रिकनेक्ट करूं और उनसे आनंद लूं, मैं सेलिब्रेट करूं या उनकी कंपनी को एंजॉय करूं। Yes, ma'am. तो आपकी हम सबकी घड़ी टिक 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 करती जाती है, एक एक दिन करके बीतता है, लेकिन हर दिन एक नया दिन होता है। सूर्य बोलता है, सूर्य, डज द सन से आई रोज yesterday, आई डोंट नीड टू, I don't rise again. The sun rises afresh in the same way. That's the law of nature. And it sets the same way. That's the law of nature. So we have only one choice, is to make the right choices all the time through the day. Okay, thank you, ma'am. And what is achievement? उस दिन में जो आप कर्म करते जा रहे हो, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप समझदारी से उन अपॉर्चुनिटीज को पकड़ोगे और कामयाब बनाते अपनी अपनी विजडम से, जरूरत के अनुसार। You will pick up the opportunities as per choices you're making, what you want to be, but you're making better choices which are ethical, which are moral. Yes, ma'am. That's what life is about. About right choices. Yes. All right, let's go to our next friend. Convert, your turn. Good evening, ma'am. Yes, This Convert. is Nur Singh Sohal from Swami Sandas Public School, and I am in 10th grade. And I am very feel honorable to have a live session with you, ma'am. And ma'am, my question is that you are talking about that case of that girl, and you are talking also about the mistakes that done by that girl. But you should not think that the man, the person the man behind him, he is also wrong. His education, also educated. I listen that he is also educated. He is also aware of society. Why in our society only man is doing that thing? Our parents are not giving the right education to their child, to their son child. They set their daughter, आपने ऐसा नहीं करना, आपने ऐसा करना है, but they don't set their son that आपने कभी भी ऐसा नहीं करना, कभी बाहर जाके किसी औरत को गलत तरीके से नजरिए से नहीं देखना, औरतों की इज्जत करनी है। हम सिर्फ अपनी बेटियों को ही सिखाते हैं, as in at my home also my parents told to my sister that don't do this, and I tell my mom that why you are not telling me that what should I have to do in my life, only to my sister. If we are giving a right education to a man, then nothing is problem. All these cases are only due to the education. We have all pressure with on the daughters. We don't make our son child a aware to our society, how to live in the society with a girl. Ma'am, this is my doubt, ma'am. Please talk about that. बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ट्रूथफुली बोला। यही तो प्रॉब्लम है जो आपने बोली। आपने, रितिका ने मुझे सिर्फ लड़की के बारे पूछा, अब आप मुझे दूसरा प्लेयर कि लड़के का क्या? दो चीजें, उसका क्या कसूर, उसने क्यों गलती की है, नंबर 2, क्यों नहीं उसकी वो शिक्षा ठीक मिली। अब रितिका, ये जो लड़की है श्रद्धा की, के पेरेंट्स ने पढ़ाया नहीं पढ़ा, उसने सुना नहीं, शायद उसने उनका कहना नहीं माना, वो रिबेल बन गई, 18 की हो गई, अब मैं बड़ी हो गई, नाउ आई एम द डिसाइडर, नाउ यू लीव मी। सो अब माँ बाप कितनी देर उसके पीछे रहेंगे? तो काउंसलिंग की नहीं हेल्प, काउंसलिंग नहीं मिली, काउंसलिंग सेंटर्स पास पास नहीं है हमारे काउंसलिंग सेंटर्स एक रूल नहीं है, एक पार्ट ऑफ द सोशल सिस्टम नहीं है। काउंसलिंग सेंटर्स हमारे सोशल सिस्टम नहीं है,
टीनेजर काउंसलिंग नहीं है, टीनेजर काउंसलिंग नहीं है। सिंगापुर जैसे कंट्रीज में प्री मैरिटल काउंसलिंग है। आपने मैरिज की है, बिफोर रजिस्ट्रेशन गो फॉर अ मैरिज, अंडरस्टैंड व्हाट मैरिज इज। In Singapore, there's a pre-marital counseling centers. So before you're registering for marriage, go for counseling to understand what is marriage, what is relationships. हमारे यहाँ नहीं है. There's no premarital counseling, whereas there's a very high need for premarital counseling in our society today. And they are called family counseling centers, but they are far and in between. बहुत दूर दूर के, कोई पता ही नहीं कौन से centers है, बड़ी कम है. And that comes out of the social services budget of the governments, because these are government expenses. वो नहीं है. लेकिन तुमने जो बोला, पेरेंट्स क्यों नहीं सिखाते? पेरेंट्स सिर्फ लड़कियों को सिखाते हैं, लड़कों को क्यों नहीं सिखाते? यहीं पर ही वीक पेरेंटिंग है. गुड पेरेंटिंग विल ट्रीट बोथ गर्ल्स एंड बॉयज इक्वली, और दोनों को समझदार बनाएंगे, दोनों को समझदार बैठा के, दोनों को समझाएंगे. लड़की को बोलेंगे बहादुर बन, लायक बन, और अपनी कमाई सारी उम्र खुद करना. एंड यू मस्ट नो हाउ टू टेक बेटर डिसीजंस. और लड़के को ये समझाएंगे लायक बन, पढ़ लिख बन और जिम्मेवार बन, क्योंकि समाज को तुमने भी चलाना है और तुमने घर भी चलाना है, तुमने अपना घर भी चलाना है, घर में भी मदद करनी सबकी. ये नहीं सोचना ये मेरा काम नहीं, वो उसका काम नहीं, ये लड़की का काम, ये लड़के का. कोई लड़की लड़के का, अगर दोनों लड़का लड़की इक्वली पढ़ रहे हैं, दोनों ही बराबर में काम भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, कमाएंगे भी, घर भी चलाएंगे अपना अपना जब बड़े होंगे. ये है पेरेंटिंग. जहां जहां पेरेंटिंग अधूरी है, वहां वहां ऐसे आदमी लड़के पैदा होते हैं, जैसे ये हुआ जिसने ये कितना जबरदस्त मर्डर किया. ये ऐसे लड़के पैदा होते हैं और कितने खतरनाक है. सी द काइंड ऑफ डेंजर दे कॉज टू द सोसाइटी, वेयर बिकॉज ऑफ बैड पेरेंटिंग. पेरेंटिंग का असर है. दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द स्कूल. स्कूल के पास थोड़ेगा और सुनेगा नहीं सुनेगा, पेरेंट्स के तो है ही कंट्रोल में ना. वो ऐसा बॉर्न, ही इज नॉट अ बॉर्न मर्डरर. It's by own bad parenting he became a murderer. By his bad habits he became a murderer. He had bad habits of alcohol, for drugs, and many other things. So this what? So you are right, Kanwar, that it is equal parenting which is critical. अब Okay. आप कहेंगे मुझे, तुमने सीखा अपने पेरेंट्स को कि आप मेरी सिस्टर को बता रहे हो, मुझे भी बताओ ना मेरे लिए क्या है. Whereas ऐसे घरों में क्या होता है, लड़का कभी भी रात को आ जाए, माँ कहती बेटा मैं तेरी वेट कर रही थी, तू शुक्र आ गया, तू ठीक है ना. और लड़की तू कहाँ है, 8 बजे तू कहाँ गई, मैं तो डर रही थी, क्या हो गया. तो डरो लड़के के लिए भी ना, लड़के के लिए भी रूल बनाओगे. डिनर टाइम पर दोनों जने सबने पहुंच रहे, सबने खाना मिलके खाना 8 बजे, 8:30 बजे. नहीं दोस्तों के साथ नहीं. डिनर तुमने लंच ले लो दोनों, डिनर घर में, डिनर मम्मी डैडी के साथ. जब ये आदत पड़ जाए तो दोनों के लिए रूल बन जाए. इसको पेरेंटिंग कहते हैं. तो यू रेज्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन. कारण यही है कि ऐसे जो बिगड़े हुए लड़के हैं, ये माँ बाप के हाथ से बाहर होते हैं. इसलिए उनको जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप खुद इनसे डरने लग जाते हैं कि चले ना जाए, तो चले जाए तो चले जाए. अब क्या कर सकते. पहले आपने क्यों गलत किया. तो मैंने फिर से बोला, देयर आर नो काउंसलिंग सेंटर्स. वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ काउंसलिंग. ऑलराइट, लेट्स गो टू रत्ना. Thank you, ma'am. थैंक यू चाइल्ड. यस रत्ना. Namaskaram, ma'am. I'm so happy to be here in this session, and I'm so glad. First of all, I would like to thanks to all the people behind the demonstrative learning platform, क्योंकि मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि मुझे ये मौका मिले आपके साथ इस सेशन में जुड़ने का. एंड बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट आप बचपन से ही मेरी आइडियल रही हैं. एंड एज यू मेंशन अर्लियर इन योर इंट्रोडक्शन कि आपके पेरेंट्स आपको एक एडिटोरियल कॉलम हमेशा सुनाते रहते थे. द सेम थिंग विच माई फादर ऑल्सो यूज टू डू. उन्होंने बहुत पहले मुझे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक कॉलम आया हुआ था
आपकी जीवनी के ऊपर, और उन्होंने बताया कि ये किरण मैम है, इन्होंने इस तरीके से अपनी चीज़ों को अचीव किया है एंड एवरीथिंग। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि टिल माई 8th स्टैंडर्ड मैंने हेयर स्टाइल भी आप ही की तरह रखा हुआ था। एंड इवन मतलब बचपन से ये सपना था कि ज़रूर एक दिन आएगा कि मैं आपसे बात करूँगी। एंड आई एम स्टिल होपिंग कि one day I'll come and talk to you in person as well. And okay, so I would like to talk about my introduction. This is Ratna Singh. I'm 17 years old student from International Hindu School, and मैं भारत के एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर से हूँ, वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जानते हैं। और मैम, आई एम इंडियाज यंगेस्ट ऑथर। मैंने बुक्स भी बहुत सारी लिखी हुई हैं, एंड आई हैव रिटन अ रिसर्च पेपर ऑन वुमेन हरासमेंट which gave me the title of national and world record. And apart from book and authoring, I'm also doing the activism thing. I'm a environmental activist. So I'm running an my international youth-led organization, which is running by the hands of students from 12 plus countries and 3 continents. So we are collectively running this organization and educating people about environment conservation, climate change, and sustainable development. So everything. But in this session, I would like to talk about something very different, which everyone talk. Like अभी तक हमने उस श्रद्धा दीदी के केस के ऊपर जो भी बातें की, जो चीज़ें उनके साथ हो चुकी हैं, उन चीज़ों पर हमने बातें किया, और हमने इम्पैक्ट्स को देखा कि क्या चीज़ें होनी चाहिए थी और क्या नहीं होनी चाहिए थी, क्या सही था, क्या गलत था। बट इन द वेरी बिगिनिंग आपने जो मेंशन किया कि वहाँ पे इमैच्योरिटी थी और इम्पेशंस था। तो मेरे ख़्याल से ये ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल के युवा वर्ग, आजकल के यूथ फेस कर रहे हैं, एंड दीज़ आर सम ऑफ द कॉज़ जो कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स में पुश कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें इमैच्योरिटी की वज़ह से आती है। एंड पर्सनली आई बिलीव कि जो भी चीज़ें हम अपनी लाइफ़ में करते हैं, कोई भी एक्शन जो भी हम लेते हैं, व्हेदर वी आर स्टडिंग, वी आर मीटिंग टू समवन, एनी एक्टिविटी, एनीथिंग दैट वी आर डूइंग इन लाइफ, वो इस चीज़ों पर निर्भर करता है कि हम कैसा सोचते हैं, और हम क्या हमारा रूटीन किस तरीके से है। तो समवेयर आई थिंक कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अपनी हम लाइफ में कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम अपनी रूटीन में कुछ बेसिक चीज़ों को इन्वॉल्व करें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक रूटीन बना लेते हैं, एक हैबिट बना लेते हैं कि हमें अर्ली मॉर्निंग उठना है, लाइक 3 एएम, और उसके बाद हमें मेडिटेशन करना है, या फिर हम डेली उठ करके 40 मिनट्स जस्ट बुक रीडिंग करेंगे, या फिर हम सेल्फ हेल्प बुक पढ़ेंगे। तो दीज़ आर द फ्यू एक्टिविटीज़ जो कि हमें हमें कॉन्शियस बनाएगा, हमें इस चीज़ पर सोचने पर मजबूर करेगा कि हम क्या एक्शन ले रहे हैं, हम किन लोगों से मिल रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के युवा वर्ग को स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलना चाहिए। इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते आए हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरी फैमिली में हमें कहा जाता है कि आपको सुबह 3 बजे उठना है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता है उसे। आप उस वक़्त उठिए, और उस वक़्त एटमॉस्फेयर का एनर्जी लेवल बहुत डिफरेंट होता है। बहुत सारे ऐसे नेचुरल फिनोमेना होते हैं उस टाइम एटमॉस्फेयर में, चेंजेज़ हो रही होती हैं। तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हमारी लाइफ़ पर पड़ता है, एंड आई बिलीव कि जो इम्पैक्ट हमारे लाइफ़ पर पड़ता है, हमारे थॉट्स पर पड़ता है, हमारे इमोशंस पर पड़ता है, इट विल डेफिनिटली हेल्प अस कि हम क्या एक्शन परफ़ॉर्म करने जा रहे हैं, हम क्या डिसीज़न ले रहे हैं, या फिर अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, आज हम सभी 12th में हैं, स्कूल्स में हैं, कल को हम कॉलेज में जाएँगे, हम कौन-सा स्ट्रीम चूज़ करते हैं, हम किन दोस्तों से मिलते हैं। जैसे कि रवि ने अभी कहा कि हम दोस्त जब बनाते हैं तो हम क्या चीज़ें जज करें, हम क्या चीज़ें सिग्निफाई करें वहाँ पर। तो दीज़ आर द फ्यू थिंग्स व्हिच विल डेफिनिटली हेल्प अस। एंड राइट नाउ आई जस्ट वांट योर ओपिनियन कि डू यू आल्सो थिंक कि आजकल के युवा वर्ग को स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर जाना चाहिए? बिकॉज़ दिस इज़ अ क्वेश्चन व्हिच इज़ मर्मरिंग इन माय ब्रेन कि जो रूटीन हम फॉलो करते हैं व्हिच इज़ कंप्लीटली रॉन्ग, एंड जो चीज़ें हम लाइफ में कर रहे हैं शायद वो गलत तरीके से हो रही हैं, शायद उन्हें उनका डायरेक्शन थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। और शायद हमें उन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए जो पहले हिस्ट्री में हुई हैं, और जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते रहे हैं कि हमें जल्दी उठना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, हमें अपने माँ-बाप का पैर छू करके अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो दीज़ आर द फ्यू एक्टिविटीज़, डू यू थिंक सो दैट दीज़ विल हेल्प अस इन सॉर्टिंग आवर प्रॉब्लम्स? एब्सोल्युटली। हम लोग जो व्यक्ति गॉड फियरिंग होता है, जो व्यक्ति गॉड फियरिंग होता है, वो स्पिरिचुअल होता है। जो व्यक्ति गॉड फियरिंग होता है,
वो गलत रास्ते पे नहीं चलता है, वो सही रास्ता ढूंढता है. दैट्स स्पिरिचुअल. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल. आपने बहुत सारे डाकू देखे हैं. आपको याद है एक डाकू थी फूलन देवी. एक डाकू थी फूलन देवी, उसका नाम था फूलन देवी. उसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है फूलन देवी. वो क्या करते थे, और सारी उसकी ट्राइब पहले एक मंदिर में जाते थे, किसी एक मंदिर में. तो एक मंदिर में जाके पूजा करते थे और सीधा मर्डर्स करते थे और रेप्स करते थे और लूटते थे. देवर were they spiritual or they were religious in the very cultish way. एक cultish way से religious थे, but they were committing all crimes. So आप कहेंगे बड़े गॉड फेयरिंग थे. नो, they were cult practitioners. ले रहे हैं भगवान का नाम लेकिन कर रहे हैं क्राइम. ये नहीं है, इसको नहीं. देवर फॉलोइंग अ कल्ट. सो हमको स्पिरिचुअल बिहेवियर क्या है? इट्स गॉड फियरिंग, कि मुझे कोई देख रहा है. स्पिरिचुअल मीन्स मुझे कोई स्पिरिट देख रही है. There is a spirit within which is uniting all of us, and that's the soul. There's a common spirit which is running into each one of us, and मुझे गलत सोचना नहीं, गलत करना नहीं, गलत होने नहीं देना. और मैं हिम्मत से, दिस इज स्पिरिचुअल बिहेवियर. स्पिरिट इज ऑल अबाउट ethical behavior. You're being true to yourselves. That you're a spiritual person. आप बैठ के आंखें बंद करके भगवान को प्रार्थना करे ना करे, you're already in alignment with the spirit within, and that's God within. That means if you are in alignment with within, you are meditating. When you are meditating, what are you in alignment with? You are in alignment with your thoughts within. And what are your thoughts within? It's a soul within. Because अब आप किसके साथ डायलॉग कर रहे हो? आप डायलॉग कर ही नहीं रहे when you are meditating. You are within your own inner voice. What your inner voice is your spirit. इनर वॉइस कभी आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जाएगी. इनर वॉइस कभी आपको ये नहीं करेगी इसको मार दो. इनर वॉइस कभी नहीं कहेगी. सो दिस इज स्पिरिचुअल बिहेवियर. सो टू माई माइंड दिस यूथ जो है, जब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की तरफ चलता है, वैल्यूज पर चलता है, तो वो स्पिरिचुअल है. हाँ, उसके बाद वो अपने सिविलाइजेशन के पढ़े, अपनी संस्कृति पढ़े, वेदास पढ़े, उपनिषद पढ़े, महाभारत पढ़े. आप में से एक ने महाभारत पुस्तक पढ़ी और बड़े लेसन आपने, इसलिए कन्वर ने बोला ना महाभारत पढ़ा. सो आप अपने वेद मंत्र पढ़े, तो उसमें वेद मंत्र में तो कोई गलत रास्ता है ही नहीं. दैट्स स्पिरिचुअल. दैट इज स्पिरिचुअल. आप गुरबानी पढ़ें, दैट्स स्पिरिचुअल. क्योंकि आप उसको जब आप ऐसी अच्छी बात, अच्छा बिहेवियर अपनी जिंदगी में उतारते हैं, एथिकल बिहेवियर में, तो आप स्पिरिचुअल पर्सन कहलाते हैं. तो हमारी यूथ भी ऐसे जब वो अच्छे कॉन्डक्ट की तरफ जाएगी तो वो स्पिरिचुअल होगी, तो अच्छा इंसान बनेगी. अच्छा इंसान जब बनेगी तो अच्छा कर्म करेगी. अच्छा कर्म करेगी तो सबका भला होगा, उसका तो भला होगा ही. कोई प्रोडक्ट, कोई अच्छा बिजनेस करेगा, कोई अच्छा टीचिंग करेगा, अच्छा पुलिस ऑफिसर बनेगा, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव बनेगा, सब कुछ अच्छा. दैट मीन्स भला ही भला मानवता का. सी, एक व्यक्ति स्पिरिचुअल होने से जब कर्म योगी बनता है, अच्छा कर्म करता है, वो स्पिरिचुअली तो है. सो दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, रत्ना. सो मेरी यूथ, आज की यूथ, अगर हम स्पिरिचुअल बिहेवियर अपने असेंबली में ले आए, विच इज मॉरल साइंस, एथिकल एजुकेशन, और अपनी संस्कृति को, रूट्स को पढ़ें कि हमारी संस्कृति कितनी हजारों साल दूर है. और अगर हम अपनी रूट्स को पढ़ेंगे तो हम रूट्स को हम आप पहचानेंगे कि हमारे में जीन्स, डीएनए आया कहाँ से. हम गॉड फीयरिंग क्यों है? हम आज सूर्य देवता को क्यों पढ़ते हैं? व्हाई आर वी वर्शिपिंग नेचर? हम नेचर लवर्स क्यों हैं? It's coming from our genes, where even the people tree is. Why? Because tree is life. Tree is life. Tree is life. Tree gives you life. So you are worshipping even nature because it's life giving. You are being spiritual. You will not cut down trees. You will then worship, you will value environment. You'll keep it clean. See, farak pada nature mein. So everybody's behavior becomes a responsible behavior. Zimmewar behavior. So ये है बच्चे.
So thank you so much for wonderful discussions. We'll ask Sana to sum up, Sana, because we have जी crossed the limit already. But can you please do the sum up? जी जी बच्चों, बड़े बच्चों, बड़े बच्चों को सम अप करना है। चलो, तो बड़े बच्चों के लिए सम अप, कुछ क्वेश्चंस एंड कुछ थॉट्स, फिर आप सब सोचना उसके बारे में। सोचना, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू डू यू पुट ऑन योर कैरेक्टर। आपका चरित्र, मर्यादा, कैरेक्टर, ये सब शब्द आपके लिए क्या मायना रखते हैं? कैरेक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, चरित्र, मर्यादा, ठहराव आपके लिए क्या मायना रखता है जीवन में? ये सब सोचना। दीज आर जस्ट क्वेश्चंस। एक और बात, संगति के ऊपर बात हो रही थी, तो मैं कभी कभी लिखती भी हूँ और कुछ विचार रिकॉर्ड भी करती हूँ। तो आज सुबह ये आया था मन में, पर किया नहीं था। आई डिडंट नो कि ये बात ऐसे बोलनी पड़ेगी। कि विचार आया था एक सामने कि आपके झूठ को भी जो वाह वाह करेगा, वो ही आपको तबाह करेगा। तो फ्रेंड का मतलब होता है, डिक्शनरी मीनिंग मुझे नहीं पता, लेकिन फ्रेंड का मीनिंग वो होता है जो आपका वेल विशर है। पर जो इंसान खुद का ही वेल विशर नहीं है, वो आपका वेल विशर कैसे बनेगा? तो इतनी तो समझ रखो कि जिसको आप अपना फ्रेंड बना रहे हो, वो असली मायने में खुद का भी वेल विशर है कि नहीं? तो समझ तो बढ़ानी पड़ेगी, समझ बढ़ाओ अपनी। अच्छा, कर्मा की बातें होती हैं, फ्री विल की बातें होती हैं, चॉइसेस की बातें होती हैं, आई एग्री। पर बेटा, जब टिकट बुक कराने जाते हो तो पूछा जाता है ना कि कहाँ की टिकट बुक करानी है। हाँ, क्या आप जाके बोल देते हो कि किधर की भी टिकट बुक कर दो? क्या बोलते हो? यहाँ की करानी है। तो अपने जीवन को दिशा क्या देनी है, आपको टिकट किधर की बुक करानी है इवेंचुअली, वो तो आप ही डिसाइड करोगे ना कि आपको अपनी जिंदगी की टिकट किस दिशा की कटवानी है। सफर सफर होगा, वो सफर की और जर्नी के उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको टिकट कहाँ की कटानी है, आपको जाना कहाँ है, वो तो तय करो। एंड दैट कांट स्टार्ट वेरी लेट इन लाइफ। उसको नियत में तो तय करो, नियत में, नियत में तो तय करो कि टिकट कहाँ की कटानी है। तो सोचना, वो आपको फैसला करना है। लास्ट बात, अपने अपने डॉक्टर बन जाओ। रोज रात को अपनी खुद की जांच करो, चेकअप करो अपना, अपने माइंड का, अपने दिमाग का, अपनी सोच का, अपनी आदतों का, अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी नजर का। अपने खुद के चिकित्सक बन जाओ, करो अपनी जांच, क्या ठीक चल रहा है, क्या ठीक नहीं चल रहा है, और उसको ठीक ठाक करो। ये आपको पता है, आपकी रियलिटी के अनुसार कि आप कैसे आपको उसको ठीक ठाक करना है, अपने शरीर को, मन को, जो जो एरियाज ऑफ लाइफ बोले। आपकी सेविंग्स, आपके रिलेशनशिप्स, कोई किसी को कोई ग्रूमिंग चाहिए, कोई कोई हेयर या स्किन केयर, कोई हेल्थ, कोई पढ़ाई, कोई करियर, कोई एडवाइस चाहिए। सो दिस इज अ कंप्लीट जांच ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, और उसको फिर जो ठीक ठाक करने के लिए करना है वो करो। तो ये सब सोचो and wish you all the very best. Ma bless you all. Thank you. Thank you, Saina. I think you got a day coming up. Lot of more additional points. Anything else? Last minute you want to say? Ravi, you want to say something? Yes, ma'am. Ma'am, today is International Corruption Day, Anti-Corruption Day. That's right.
And today I am very happy to meet you, and you have worked very much against corruption during Anna Hazare anti-corruption movement. Yes, we did. Thank you. Yes, we did. Thank you so much, Ravi. Very nice. I'm so happy to meet Ritika, Ravi, Samya, Simriddhi, Kanvandur, and Ratna. All six of you doing us proud. मुझे कोई डाउट नहीं है कि तुम भारत के रत्न बनोगे as you grow up. आप बहुत भारत के रत्न बनोगे. Already you are our diamonds already, and you'll make it big, very big in life. और जिंदगी जब हमें मिलाएगी तो कहेंगे मैम मैं सेशन 106 आज कि 107 आज. Saina, what is 106. it? Yes, 106. Yes. तो आप कहोगे मैम आई बी आर 106. आप मिलोगे आके भीड़ से निकल के आओगे मैम मैं आई एम 106. अच्छा मुझे याद है 17-year-olds यू आर ब्रिलियंट. तो तुम लाइक बनोगे. मुझे कोई शक नहीं है. भगवान हम प्रार्थना पूरा आशीर्वाद देते हैं कि आपकी लियाकत को भगवान और भी चमकाए. Saina or me and the entire team of Demonstrative Learning want to thank you and bless you. Thank you, children. Thank you. Thank Thank you, ma'am. Thank you so much. खूब Thank you. खूब हंसते खेलते रहो. Thank you. Thank ma'am. you. Thank you. We'll stay connected. Thank you. Thank you. रोज प्रार्थना करो. रोज प्रार्थना करो. Thank you. जय Bye धारी. bye. Thank you. Thank you, Jai Madhani. बाय. Thank you. खुश रहो.